अच्छा, हो गई है 21 का स्लॉट 3। दैट इज़ व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ। और ट्राई करेंगे इसको पूरा ख़त्म करें इसी में। राहुल स्टार्टेड, इसका भी 68 वीडियो आ गया था, इसका भी आ गया था। ये 12 वाला क्वेश्चन हम देख रहे थे, इसमें प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, तो जब भी प्रॉपर्टी के क्वेश्चन है तो वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट करने हैं, और फिर उनके एक्सप्लेनेशन भी हमें अच्छे से समझना है, राइट। प्रॉपर्टीज़ में ये है कि ओके, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू वी नो हाफ इंटू डी वन इंटू डी टू, which is given is 96. So d1 into d2 का product is 96 into 2, something like that. Okay. But एक जो property हमें इसमें नहीं पता थी, and that was useful, that rhombus में the two diagonals bisect each other. Actually, when they intersect, they bisect, like they divide each other by half, right? In a two equal half. So, okay, not only that, when they bisect each other, they, yeah, I think when I say bisect, it should be treated as that it's a 90 degree, and actually it is a 90 degree. So you don't have to remember, you don't have to imagine rhombus in a way that you have, like how you imagine it placed on, you have to imagine it in a kite shape, let me tell you. Okay, so kite is something which is very good thing, and you can see the, like if you see the kite, you see the horizontal line and there is a vertical line. These two are two diagonals which are exactly perpendicular to each other, as well as they bisect each other into equal half. D1 and D2, I'm not saying D1 is equal to D2. That's a difference. The diagonals can be of different length. They can be a kite which is very short in width, it's very narrow, but having a long length. There can be a kite which is having short length and it's very wide. So D1, D2 can be greater than each other. D1, D2 can have not equal, obviously, and there can be massive difference between them. But one thing which is sure is when they intersect at right angle first of all, and they bisect each other. So when they intersect, they divide each other by two. Because why I'm focusing on this so much, because you have to basically tell d1 plus d2, but what you have been given is 40 meter for this. So now you have a d1 plus like d1 divided by 2. Yeah. So you have basically each side, because they have said that okay, parameter of rhombus is equal to 4a, that is equal to 40, so a is equal to 10. Now you have each side is equal to 10. Then what you need to tell is that okay, so if this is my d1 and this is my d2, so 10 is something kind of a hypotenuse for this right angle triangle, which I said that okay, they intersected a right angle and this is equal side. So there is x as a perpendicular, there is x as base, and there's 10 as hypotenuse, right? which means which means that x is equal to 10 divided by root 2. Now what is x is equal to d1 by 2. Okay, I'm not saying that okay, yeah, this is a issue that the x and these two are not same. Perpendicular is not equal to base, because perpendicular is equal to, let me put it in that way, this is d1 by 2, this is d2 by 2. Yeah, and hypotenuse is equal to 10. So the relation which we got, we don't get something like x and 10, we get a relation which is d1 by 2 ka whole square, which is d1 square plus divided by 4, d2 square by 4 is equal to actually 100. So d1 square plus d2 square 400, d1 square plus d2 square is equal to 400. What I need is d1 plus d2, which is equal to okay. So what I'm trying to find out is d1 plus d2 whole square. Okay. Now this is pure algebra, because you know that okay, d1 square plus d2 square is equal to this. You don't know what is d1 d2 obviously, but you know the sum of their square, and you know the product of them, d1 d2. So I can have 2 into d1 d2, which is equal to the product into 2, which is basically 4 into 96 now. Yeah, that's what, like I think we got it over, obviously. 400 plus 4 into 96 is d1 plus d2 whole square. I just need to take a root of this, and now what it is, yeah, to look at this, what it is, you yeah, so 96 into 4, you calculate that and then you add it with 400. That's completely fine. But what I'm going to do, I'm taking common, so I take 4 common. 100 plus 96, again take one more 4 common, and I get 4 outside the root. Now 100 became 25, plus 96 became 48 divided by 2, 24. Okay, so 25 plus 24, that's 49, you know. So 49 root is equal to 7, so 7 into 4 is 28. So this is the required answer, 28, right?
Now 28 into 20 is the d1 plus d2. That's what you need to find out. You have to color it, basically not color it, but yeah, electric wires you need 125 per meter. So the total is 28 meters into 125 you need to do. 125 को लिखने का better तरीका is 1000 divided by 8. Okay, right, yes or no? So this is 7 divided by 4. 7000 divided by 4, 3500. I think we got it right. 7. Wait a second. 7 divided by 2, yeah, 3500. Yeah. तो ये हो गया था, अच्छा प्रॉब्लम था बहुत ही, बिकॉज ऑफ प्रॉपर्टी, राइट? जब प्रॉपर्टी यूज हो रही है तो प्रॉब्लम तो अच्छा हो ही जाता है। अब सेकंड क्वेश्चन में ये दो ग्राफ दे रखे हैं हमें बेसिकली, काइंड ऑफ एक्स वाई और ये सब है, तो एक लाइन है, दो लाइन कहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं हमें वो देखना है। बट द प्रॉब्लम इन दिस इज कि तुम्हें एक्स प्लस टू वाई फाइंड करना है। मॉड्यूलस ही दिक्कत है। अगर सिंपल मेरे को 3x प्लस 3y इक्वल टू 7 दे रखा होता और 2x प्लस 3y इक्वल टू 1 दे रखा होता, तो मैं क्या कर रहा होता, मैं 3x से 3y, 2x से 3y है, मैं माइनस कर रहा होता और मेरे को x इज इक्वल टू 6 मिल गया होता और y इज इक्वल टू मेरे को कितना मिल गया होता। अगर h 6 है तो 1 माइनस 12 माइनस 11 डिवाइड बाई 3, बहुत ही अजीब सी वैल्यू, बट चलता है। ठीक है, क्योंकि 21 16, हाँ, 18 में से जब तुम 7 माइनस करोगे तो वो भी 11 बनेगा, माइनस का 11 बनेगा, डिवाइड बाई 3 करोगे तो माइनस 11/3, वाई की वैल्यू ये बन गई। तो ये दोनों इंटरसेक्ट करते 6 कॉमा -1/3 पे। बट क्या अभी ये वहां पे इंटरसेक्ट करेंगे या कहाँ इंटरसेक्ट करेंगे, आई डोंट नो। लेट्स सी। तो आई एम सेइंग कि ये तब की बात है जब मॉड वाई इज इक्वल टू वाई होता है, यानी कि जब वाई की वैल्यू पॉजिटिव होती। ठीक है, तो अभी तो वाई की वैल्यू पॉजिटिव नहीं दिख रही, तो यहाँ पे तो ये नहीं बनने वाला, राइट? तो वाई को नेगेटिव मान के चलते हैं एक बार। 3x माइनस 2y प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस वाई इज इक्वल टू 7, और x को और माइनस x मान के चलो, क्या करूँ, x को प्लस x ही मान के चलते हैं, बिकॉज वो आइडिया लग रहा है कि x प्लस होने वाला है। ठीक है, तो x को 2x प्लस 3y मान के चलते हैं इज इक्वल टू 1। तो 2x प्लस 3y, 3x माइनस का y, तो एक तरीका है कि ऊपर को मल्टीप्लाई बाय 3 करो, वही सबसे सही तरीका लग रहा है अभी। 9x माइनस 3y इक्वल टू 21। ठीक है, नीचे प्लस का 3y कैंसिल हो गया, कैंसिल हम ऐड कर रहे हैं और तब कैंसिल हो रहा है, सोच रहे हो तुम? हाँ, मैं ऐसे उससे बात हुई कुछ क्या? 11x इज इक्वल टू 22, x की वैल्यू 2 आ रही है, चलो पॉजिटिव है कम से कम, दैट इज गुड थिंग फॉर अस। ऐसा होगा, मैं अभी मिला रहा था सब काट दिया फोन। x इज इक्वल टू 2। फोन है, मैं फोन कर रहा हूँ, फोन। हाँ ठीक है, जरा बताओ यार, वो फोन आ रहा है बार-बार। तो y की वैल्यू आएगी -1। ठीक है, बताओ सर। टाटा, बाय बाय। x की वैल्यू 2 आ रही है, y की वैल्यू -1 आ रही है और 0 आ रहा है, बेसिकली मेरा तो आंसर। और तुम्हारा आंसर क्या है? 0 है। बट ये मैंने कैसे करा, और मैं हाउ आई एम सो कॉन्फिडेंट टू से 0? मैंने जब x और y को सॉल्व करा था प्लस प्लस लेके, तो मेरे को पता चला कि x की वैल्यू आ रही है पॉजिटिव, तो x तो पॉजिटिव मैंने लिया था, वो सही है, बट y की वैल्यू आ रही है नेगेटिव, जो कि मेरी कॉन्ट्रडिक्शन गलत है, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि y नेगेटिव होने वाला। तो मैंने क्या करा, मैंने y को नेगेटिव माना, फिर मैंने क्वेश्चन को सॉल्व करा। जब y को नेगेटिव, मतलब मॉड y जब नेगेटिव है, तो मॉड y इज इक्वल टू माइनस वाई होता है, तो बस कुछ मैंने माना, क्वेश्चन को सॉल्व करा, मेरे को वैल्यू मिली। तो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, बट दिस इज काइंड ऑफ प्रूफ। तुम्हें देखना पड़ेगा, थोड़ा सा देख लेते हैं, कोई शर्माने की बात नहीं है इसमें। बट देखो, या तो पॉजिटिव, मैंने बस ये नहीं सोचा कि क्या x नेगेटिव हो सकता है, मैंने ये कभी नहीं सोचा। मेरे को पता चल रहा था x पॉजिटिव है, x पॉजिटिव ही होगा। y नेगेटिव या तो हो सकता है या तो पॉजिटिव हो सकता है, तो मैंने क्या करा, y को नेगेटिव रख के देखा। पहले मैंने असम्पशन ली थी कि y पॉजिटिव, तो वो जो मेरा जो वैल्यू आई थी वो x को सेटिस्फाई कर रहा था, y को सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, राइट? केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, 4 केस बना दिए। हमें x की वैल्यू यहाँ से ये मिल रही है, यहाँ से ये मिल रही है, यहाँ से इट्स अ कॉन्ट्रडिक्टरी, y is positive, we discard this case. It is contradictory assumption, both x and y negative, we discard this case. It is contradictory because x is negative, we discard this case. तो वही चीज करी है इसने, सेम चीज करी है, बट इसे चारों के लिए गया है, ये चारों, मैं चारों के लिए नहीं गया, मैं बस दो ही, मेरे को उसमें अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो ले लो, राइट? सेटिस्फाई द assumption, अगर assumption सेटिस्फाई कर रहा है तो ले लो। अब मान लो कि दो तीन होते जो assumption सेटिस्फाई कर रहे थे, तो क्या करते हैं? आई डोंट थिंक सो होने चाहिए थे, यू नो। तो क्यों नहीं हो सकता, ये एक से ज्यादा पॉइंट पे क्यों नहीं इंटरसेक्ट कर सकते? कर सकते हैं, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। है ना, जो अजीब अजीब से ग्राफ बन रहे हैं, ये कोई स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं है। जब तुम मॉड वॉड करते हो, प्लस माइनस करते हो, तो वो डब्ल्यू टाइप भी बन सकता है, एक्स टाइप कुछ भी बन सकता है। तो ये मतलब जैसे तुम ऐसे ही देख लो,
जो तुम्हारा मॉड एक्स का ग्राफ होता है वो वी टाइप ग्राफ होता है, और वाई इक्वल टू 2 है, वो उसको दो बार कट करेगा, राइट। वाई इक्वल टू मॉड एक्स और एक्स इज इक्वल टू 2 दो बार कट करेगा, एक्स इज इक्वल टू -2 पे और एक्स इज इक्वल टू 2 पे, तो एक्स इक्वल टू -2 पे वाई हमारा 2 होगा, ठीक है। और एक्स तो 2 है ही एक्स इक्वल टू 2 पे, और एक्स इक्वल टू -2 पे, यू नो, सॉरी एक दूसरी लाइन है, y इज इक्वल टू 2, x इक्वल टू -2 पे भी y हमारा मॉड ऑफ -2 विच इज 2 हो जाएगा, और x y तो इक्वल टू 2 है दूसरा इक्वेशन, तो ये भी दो पॉइंट पे कट कर सकते थे। दोनों प्लेन आपस में एक दूसरे को, मतलब प्लेन तो नहीं है बट हाँ लाइन्स ही है बेसिकली देखा जाए तो, ठीक है। एक और क्वेश्चन करना है, एक और क्वेश्चन कर लो उसके बाद खत्म करते हैं इसे। इन टूर्नामेंट द टीम हैज प्लेड 40% मैच ऑफ 4 एंड won 30% ऑफ देम, 40 में से द रिमेनिंग मैचेस ओवरऑल 10% 50 सपोज द टोटल नंबर ऑफ मैचेस won by team, टोटल नंबर ऑफ मैचेस won by the team is this। तो एक्चुअल में उन्होंने 90% मैच जीते, ठीक है, तो टोटल टी प्लेयर्स प्लेड 40% सो फार, तो बेसिकली 30% ऑफ 4 यानी कि 10% 4 है, 40 का 10% 4 है इंटू 3, तो 12 मैच अभी जीते हैं उन्होंने ऑलरेडी, तो 12 से बड़ा होना चाहिए आंसर, ऑब्वियसली सारे बड़े। ओके, अभी मेरे को बताना है कि 60% ऑफ द रिमेनिंग मैचेस की वैल्यू मान लो एक्सेस टीम की 0.6, अगर ये जीत जाते हैं और इन्होंने 0.6 प्लस 12 इज इक्वल टू 0.5 ऑफ टोटल मैचेस प्लेड, टोटल मैचेस कितने प्लेड करें 40 प्लस एक्स, तो यहाँ से हमें एक क्वेश्चन मिल गया, एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, आई थिंक मिल जानी चाहिए, मिल गई। 4 5 20 होता है, ठीक है, 0.5x और 0.6x और 12 है, तो इधर ले आओ 0.1x इज इक्वल टू 28 हो गया, x की वैल्यू 0.1 है तो 80 कर दो, टोटल मैचेस उनके 80 हैं, तो रिमेनिंग मैचेस में से 90% जीत रहे हैं, 40 का 90% जीत रहे हैं, ठीक है, 40 का 90% इंटू 9/10, तो मतलब बस 4 इंटू 9 कर दो, कितने जीत रहे हैं 36 जीत रहे हैं, 12 ऑलरेडी जीते हुए हैं, ऐसा कुछ लग रहा है, बट ये क्या तो कुछ गड़बड़ हुई भाई। एक्स इज इक्वल टू रिमेनिंग मैसेज बोल के है ना, तो 80 में से अच्छा इंटू 2 करते बेसिकली, 80 में से 90% जीत रहा है, ठीक है। ओके, तो इंटू 2 मतलब 46 36 इंटू 72 ऑलरेडी जीत चुके हैं, 12 जीतेंगे, 12 ऑलरेडी जीत चुके हैं, तो 4 और 84 आंसर है, ठीक है बी। चलो और देख लेते हैं फिर, शार्प ऑनर मोड 10 lakh in the total pay, this is the large shirt and the total smart shirt, the price of large shirt and x प्लस वाई की वैल्यू पता नहीं, तो मैं अगर x स्मॉल का साइज है y लार्ज का साइज है, देन द प्राइस ऑफ लार्ज एंड ओके द शॉप on 64 wholesale come in two size small and the less than this, okay, small is large, तो बेसिकली अगर x लार्ज है तो y इज इक्वल टू x माइनस 50 है, तो तुम्हें 2x माइनस 50 की वैल्यू बतानी है, ऐसा कुछ है शायद से। शी स्प्रेड अ टोटल ऑफ दिस ऑन लार्ज शर्ट, x के पे कितना खर्च हुआ टोटल, मतलब zx, अगर एक का प्राइस x है, आई एम सेइंग दैट, आई एम सेइंग कि एक का प्राइस x है, तो z अमाउंट की x हमने क्वांटिटी खरीदी है, तो उसका प्राइस हमारा 5 के बन रहा है, ठीक है 5000 फॉर द लार्ज शर्ट, टोटल इज 1800, K1 x K2 y इज इक्वल टू 1800 बन रहा है, ठीक है, तो K2 की वैल्यू कितनी है, x रुक जा यार, 64 टोटल शर्ट उसने 64 उठाई है, 64 में से कुछ बिग होगी कुछ स्मॉल होगी, बिग पे 5 के खर्चा करा है, और 10 इसने बड़ी उठाई होती और 10 छोटी उठाई होती, तो टोटल डिफरेंस दोनों को पता कितना बनता, 10 इंटू 5 50, सॉरी यानी कि 50 रुपये छोटा है ना, 500 रुपये डिफरेंस बन रहा था, अभी कितना डिफरेंस बन रहा है 200, 3200, राइट, 3200 का डिफरेंस डिवाइड बाय 50 कर लें, तो इसने 64 टोटल शॉट उठाई है, सही बात है, एक सेकंड, दोनों का डिफरेंस भी 64 बन रहा है क्या, 64 इंटू 50 कितना होता है,
64 इंटू 5 कितना होता है? 100/2, 3200। और इसने एक्स शर्ट उठाई है स्मॉल, एक्स प्लस 32 शर्ट उठाई है इसने बिग। सही है ना? दिक्कत क्या है भाई इसमें? 64 प्लस 64 तो नहीं बोला ना मैंने, टोटल तो तुम्हारे पास 64 है, तो 4 उधर चले गए, तो बेसिकली 4 प्लस 32। ओके ओके। तो बेसिकली आर यू सेइंग कि 2x प्लस 32 इक्वल टू 64 और x इज इक्वल टू 16, कि x की इसने 16 शर्ट उठाई है बड़ी वाली, तो कुछ प्राइस बना होगा, और छोटी वाली इसने 48 उठा ली होंगी, कुछ प्राइस बना होगा। दोनों का डिफरेंस बेसिकली तुमने कि एक शर्ट इतना छोटा है, तो इक्वल टू लार्ज शर्ट पे ज्यादा पैसा खर्च हुआ है। ओके, 16 इंटू एक्स कर दो फिर, है ना, और 16 इंटू एक्स माइनस 50 कर दो, 48 इंटू एक्स माइनस 50। 16 और एक्स प्लस 32। K1 minus K2, 50 लेस देन लार्ज शर्ट। ओके, मैंने ये बात छेड़ी थी कि अगर इसने 10 शर्ट उठाई होती, 50 ना, 50 इंटू 10, 50 इंटू 10 क्या मतलब है कि इसने 10 बड़ी शर्ट उठाई है, 10 छोटी शर्ट उठाई है, तो उनका डिफरेंस कितना बनेगा कि 50,000 एक शर्ट का, 50,000। 10x हमारा 5,000 है। 10x अगर 5,000 है, 5 से, और इस पे इतना खर्चा कर रहा है, तो इस पे 10 माइनस 50 इंटू क्वान्टिटी उतना खर्चा करेगा। ये तो तब की बात है ना जब इसने 10 उठाई और इसने 20 उठाई, तो इस पे 20x पे खर्चा करता है, माइनस करता है। K1 प्लस K2 में ऐसा मान लेते हैं ना, देखो K1 प्लस K2 इज इक्वल टू 64, ये 2 शर्टें उठाई इसने। आई एम सेइंग कि K1 इंटू प्राइस ऑफ बिग शर्ट, ठीक है, प्लस K2 इंटू प्राइस ऑफ स्मॉल शर्ट इज इक्वल टू, इनका एडिशन मेरे को पता है कि 5 और 18 कितने होते हैं, एक्चुअली 50 और 18 हमारे 68 होते हैं, तो 6.8 के K1B माइनस K2S, के इसने ये उठाया कि K1 बी प्लस K2S इज इक्वल टू हमारा कितना होता है, बताओ कितना होता है? 3200 बन रहा है, 3.2 के बना लेता हूँ, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस इसको ऐड करता हूँ, तो बेसिकली K1 इंटू बी की वैल्यू मेरे पास निकल के आ रही है कितनी, टोटल बड़ी शर्ट पे खर्चा कितना हुआ, विच इज इन दोनों ऐड करेंगे तो हमें टेन के। K1 बी की वैल्यू तो मुझे पता ही है, 5 के है। कपड़े पजामा पहन लेगा मारेगा।
बी, और दोनों को एस में एस में रखते हैं, ठीक है, बी में रखो, एस में रखो, ठीक है। तो एस प्लस 50 है ना सर, यस एस प्लस 50, यस। दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व नहीं हो सकते क्या? के वन एक वेरिएबल है, एक एस एक वेरिएबल है, राइट? तो मैं लिख देता हूँ के वन इंटू एस प्लस 50 बढ़ेगा प्राइस, प्लस के टू इंटू एस प्लस 50, के टू इंटू एस ओनली इज इक्वल टू 6.8 के। इसको सिंप्लीफाई में अगर मैं लिखता कि के वन इंटू एस प्लस 50 इज इक्वल टू 5 के, ठीक है। के टू इंटू एस इनके जितने हैं इज इक्वल टू 3 के, जितने भी कह रहा है 8 के। और दूसरा वेरिएबल है कि के वन प्लस के टू, के टू माइनस 10, इसको करता हूँ 64 माइनस के वन, ठीक है। 64s माइनस के वन एस, ठीक है। 28 के वन एस प्लस के वन इंटू 50, के वन 50 प्लस 64s इज इक्वल टू, दोनों ऐड करनी, ठीक है, 5 6.8 के। इसको माइनस 64 माइनस 64 माइनस प्लस बचेगा, ठीक है, और वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इससे इसके इंटू 50 बचेगा, तो मेरे पास वैल्यू आएगी 6.8। बता रहे हैं 2s प्लस 50 की वैल्यू बहुत चाहिए।
चलो अभी इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं, इससे पहले और टाइम लगेगा।